ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ سیالکوٹ میں ٹریفک کی روانی کی معطلی اور سست روی پر شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں نے ٹریفک کے مسائل کا ذمہ دار ٹریفک وارڈنز اور ٹریفک پولیس کے وسائل میں کمی کو قرار دیتے ہوئے متعلقہ حکام بالا سے فوری نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ ہر چوراہے اور سڑک پر ٹریفک وارڈنز کی فرائض کی انجام دہی کو یقینی بناتے ہوئے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے شہر بھر کی ٹریفک کی روانی اور وارڈنز کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے۔ سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کے لیے پلازے کوئی نہیں ہے۔ لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں اور اپنی جو پارکنگ ہے وہ رانگ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کو پارکنگ کے لیے پلازے نہیں ملتے، جس کی وجہ سے یہاں پہ شہریوں کا جو آمد و رفت ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے، اور جو اپنے کام کے لیے یہاں حصول رزق کے لیے نکلا ہوتا ہے اس کے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ ٹریفک پولیس والے ڈیوٹی پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، موبائل تے لگے ہوندے نے، نہ انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ ٹریفک نو کنٹرول کس طرح کرنا ہے اور ون وے نو کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا روڈ یہ جو ہے نا تعمیرات کا کام جاری ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ جو مین وجہ وہ جس کا جہاں پہ دل کرتا ہے وہ موٹر سائیکل اپنی گاڑی اپنی کھڑی کرتا ہے اور کھڑی کر کے چلا جاتا ہے، اور دوسرا ادھر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ رول آف لا کی بھی تھوڑی ہے کہ ٹریفک کا جو نظام ہے ڈی ایس پی صاحب کو چاہیے کہ اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی پرابلم شیخوپورہ کے مختلف علاقوں میں چوری ڈکیتی کا سلسلہ جاری۔ تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں 2 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئیں۔ پہلی واردات چٹی کوٹھی اور روڈ پر ہوئی، جہاں 2 مسلح ملزمان شہری سے ہزاروں روپے نقدی، سونے کی انگوٹھی اور قیمتی گھڑی چھین کر فرار ہو گئے۔ دوسری واردات ریلوے اسٹیشن روڈ پر ہوئی، جہاں مسلح ملزمان نے شہری سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ اسی دوران تھانہ بی ڈویژن پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ سہاوا کے نواحی گاؤں میں آنی بالا میں خفیہ اطلاع پر ڈرگ انسپکٹر کی کارروائی۔ ایک گھر سے بڑی مقدار میں ایکسپائرڈ، چوری شدہ اور بغیر لائسنس رکھی گئی میڈیسن برآمد کر لی۔ سہاوا کے گاؤں میں آنی بالا میں محکمہ صحت کی جانب سے جعلی اور غیر قانونی میڈیسن کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی گئی۔ وزیر صحت اور ڈرگ کنٹرولر کی نگرانی میں ڈرگ انسپکٹر نے کارروائی کرتے ہوئے ایک گھر سے بھاری مقدار میں ایکسپائرڈ اور چوری شدہ میڈیسن برآمد کی۔ انکشاف ہوا کہ ادویات اسپتالوں کو فروخت کی جا رہی تھی۔ کارروائی کے دوران ادویات ضبط کر لی گئی اور ذمہ داران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ ایک راولپنڈی سے کلو ملا تھا کہ کسی جگہ پہ میڈیسنز سٹور کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، جو کہ مختلف اسپتالوں سے یا کچھ ایسی دوائیاں جو چوری کی دوائیاں ہیں وہ سٹاک کر کے بیچی جا رہی ہے۔ تو اس خفیہ اطلاع کے اوپر ہم نے تحصیل سہاوا میں میانی بالا کے گاؤں میں ہم نے ریڈ کیا اپنی ٹیم کے ہمراہ۔ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن کی پوری ٹیم تھی جس کی سرپرستی ہمارے چیف ڈرگ انسپکٹر، چیف ڈرگ کنٹرولر حضرت جمال سلیمی صاحب جو خود موقع پہ بھی موجود تھے، اور وہ بھی خصوصی ہدایات جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں، پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے خواجہ عمران نذیر صاحب، وہ خود بھی موقع پہ آج موجود تھے۔ ان کی خصوصی ہدایات پہ یہ پوری کارروائی کی گئی اور ایک کامیاب چھاپہ مار کے ایک گھر سے ہم نے بھاری مقدار میں ایسی تمام ادویات ریکور کی ہیں جو کہ غیر قانونی تھیں۔ ڈیرہ غازی خان میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ لیاقت بازار میں رکشوں کے باعث بازار سکڑ کر رہ گیا۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے تاجر برادری پریشان حال ہے اور انہوں نے انتظامیہ سے رکشوں کو فوری طور پر ہٹانے اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں طاہر معراج سے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان لیاقت بازار میں، جہاں پہ ٹریفک اور تجاوزات کے معاملات جو ہیں بہت زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں۔ تاجر بہت زیادہ پریشان ہیں، کسٹمر جو ہے وہ دکانوں پر آ نہیں سکتے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لیاقت بازار کے تاجر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں مزید صورتحال۔ ایسا ہے شیخ صاحب کہ انتظامیہ سے کئی مرتبہ میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل نہیں ہے کوئی۔ کیسے حل نہیں ہے؟ ہم نے یہ بتائیں کیسے حل نہیں ہے؟ صرف یہ رکشہ جو ہے نا سب سے بڑا جو عذاب ہمارے لیے ہے، یہ رکشہ ہی ہے۔ آپ رکشے کو ون وے کرتے ہیں، اڈے پہ جانے والا رکشہ ون وے ہو وہ اسے بند کر دیں، یہاں پہ جو آنے والا ہو اڈے کا اسے چالو رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانے والا جو رکشہ ہوتا ہے وہ ہی رکتا ہے یہاں پہ اسٹاپ کرتا ہے۔ صرف یہ آپ ون وے کر دیں رکشے کو، صرف رکشے کو، تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ درمیان سے پارکنگ ہٹائیں فوری۔ یہ اس نے 10 فٹ جگہ روکی ہوئی ہے درمیان کی پارکنگ میں، کیونکہ ہمارے پاس یہ پول کی وجہ سے 12 فٹ جگہ موجود ہے۔ 12 فٹ یہ ہم نے ضائع کی ہوئی ہے بالکل۔ اگر یہاں پہ ہم پارکنگ کریں گے تو یہ بہتر ہے۔ درمیان کی پارکنگ نے پورا روڈ روک دی ہے۔ یہ بکرا منڈی بن کے رہ گیا بازار، سب سے قیمتی بازار ہے اور بکرا منڈی بن کے رہ گیا۔
जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद दुकानदारों का कहना था कि यहाँ पर रक्शे के जो है वन वे किया जाए ताकि ट्रैफिक जो है रवां दवा रहे। बाकी तजावुज़ात के खिलाफ भी यहाँ पर जिला इंतजामिया से अपील की है कि एक ऑपरेशन किया जाए। जी मरी ग्रैंड जिरगा में शिरकत करने वाले 16 मजीद अफराद पर मरी पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात के साथ एक और FIR दर्ज कर दी है। FIR में 16 अफराद को नामजद किया गया है, जबकि 15 नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया है। मरी की सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी हलकों के अलावा ताजर बरादरी ने झूठी मन घड़त FIR की शदीद मजम्मत करते हुए FIR को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। पाकपतन में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बढ़ती हुई महंगाई शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए सड़क किनारे स्वेटर और जैकेट्स फरोशों से जैकेटें और कोट खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं हसन अब्बास बुखारी से। बढ़ती हुई महंगाई और सर्दी की शिद्दत बढ़ने से पाकपतन के शहरियों ने अपने ब्रांड की चीजें खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉलों का रुख कर लिया है और यहाँ पे अच्छी चीजें कम दामों मिल रही हैं। इन शहरियों से गुफ्तगू करते हैं। सस्ती चीजें अगर आपको मिल रही हैं बाजार से, ये ब्रांड वाली बहुत महंगी होती हैं, तो अगर ये जैकेट्स सर्दी से बचाने के लिए हमारे ज़रूरी हैं। ये नहीं देखना कि जो उस पर ऊपर टैग लगा होता है या वो है, लेकिन आपको कम रेट में मिल रही है तो कोशिश करें कि यहाँ बाहर से खरीदें। पठानों का माल माशाल्लाह पहले भी बहुत जो है अच्छा रहता है और मैंने 2-3 जैकेट्स मैंने भी खुद भी ली हैं, तो मुझे काफ़ी इसमें बेहतरी नज़र आई है। इस शहरियों का कहना है कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए ब्रांड वाली चीजें अगर बाहर से सस्ती मिल रही हैं तो बढ़ती हुई महंगाई का तोड़ यही है कि मुख्तलिफ स्टॉलों से जो है खरीदारी की जाए। जी बहावलनगर सुबह के वक्त नाश्ते के लिए डबल रोटी, रिस्क, अंडों और दीगर मुख्तलिफ अशिया लेने के लिए लोग बेकरियों का रुख करते हैं। बेकरियों पर आने वाले लोगों का कहना है कि डबल रोटी 70 की कीमत रुपए से बढ़कर 120 रुपये कर दी गई है। अंडा 25 से बढ़कर 35 और बिस्किट की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा है। मजीद जानते हैं मलिक मकबूल से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावर नगर की एक बेकरी पर और मैं आपको बताऊँ यहाँ बेकरी पर जो लोग अपने घर के लिए सामान लेने के लिए आ रहे हैं, चीज़ें लेने के लिए आ रहे हैं, ये लोग सुबह सुबह आपको पता घर से आते हैं बेकरी पर और यहाँ से चीज़ें लेकर जो है सुबह का जो है वो नाश्ता तैयार करवाते हैं। तो आज हम मौजूद हैं एक बेकरी पर, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछेंगे। आप बताएं जी, यहाँ बेकरी पर क्या इस सुबह नाश्ते में क्या परचेज़ करने के लिए आप आए हैं? ये मैं अंडे और ब्रेड परचेज़ करने के लिए आया। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि पहले से अब जो है महंगाई कितनी हो चुकी है या महंगाई कम हुई है? क्या आपको क्या नज़र आ रहा है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है या कम हुई हैं? पहले से बहुत चीज़ों के रेट हाई हो गए हैं। पहले अंडा 20 रुपये का 15 रुपये का मिलता था, अब अंडा 30 रुपये का हो गया है। पहले ब्रेड 60-70 रुपये की मिलती थी, अब 120 रुपये की हो गई है। गरीब आदमी तो बस बेचारा अपना गुजारा कर रहा है। अच्छा, दुकानदार से पूछेंगे, दुकानदार हमारे साथ होंगे। आप बताएं जी, ये जो आए रोज़ जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर आपको पता है कि घी वगैरह हर चीज़ महंगाई पीछे से बढ़ गई है, तो उसके मुताबिक फिर रेट बढ़ जाते हैं चीज़ों के। ये देखें जी, हमें बता रहे हैं दुकानदार जो है कि घी की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो साथ ही जो है ये सारी चीज़ें घी में तैयार होती हैं, चीनी में तैयार होती हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अगर मैं इंतज़ामिया के हवाले से बताऊं तो इंतज़ामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बना दी गई हैं, लेकिन वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती हैं और इनकी कीमतें कंट्रोल नहीं की जा रही। जी निखार पैदा करने के लिए महकमा तालीम के ज़ेर तमाम स्कूलों के तलबा के माबैन ज़िला सतह के मुकाबला जात का इनेकाद हुआ। इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम की ये रिपोर्ट। मज़मून निगारी उर्दू नसर की एक ख़ास सिनफ है जिसका आगाज़ 5 दहाइयाँ केबल उर्दू में दहली कॉलेज से हुआ। सर सैयद अहमद खान और इनके साथियों ने इस सिनफ के फ़रोग के लिए बहुत मेहनत की। टोबा टेक सिंह में तलबा में मज़मून नवीसी के फ़रोग और फ़न में निखार पैदा करने के लिए महकमा तालीम की जानब से तहसील सतह के मुकाबला जात के बाद चारों तहसीलों में कामयाब 24 तलबा के माबैन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 में ज़िला सतह के मुकाबला जात का इनेकाद हुआ। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मिसेज अकीला इंतखाब खान ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ पे आज हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये कंपटीशन होने जा रहा है ऐसे राइटिंग का। तो ये हमारे CM साहबा की हिदायत पे, हमारे सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब की और स्पेशली हमारी कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न
मैम ने स्पेशल इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है। तो तमाम तहसीलों से जो विनर बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे बच्चों में मजमून नवीसी का शौक़ पैदा होगा। उर्दू मज़मीन नवीसी के ज़िली सतह के तालबात के मुकाबला जात में गोजरा की दहम जमात की तालबा ने पहली, टोबा टेक्सिंग की रमीन फातमा ने दूसरी और ईमान फातमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि तलबा में पीर महल से नहम जमात के असद सरवर ने पहली, कमालिया के रफ़ीउद्दीन ने दूसरी और पीर महल के मोहम्मद अमीर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स की हौसला अफजाई के लिए महकमा तालीम की जानब से कैश इनामी रकूम भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। चूनिया में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग का 8 से 10 घंटे तक दुरानिया कर दिया गया है। शहरियों के लिए खाना पकाना भी मुहाल हो चुका है। मजीद जानते हैं महर वकार अनवर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूनिया में। जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है तो यहाँ पर जो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका दरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से घरेलू ख़वातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ दफातर जाने वाले मुलाजमीन और बच्चों को भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जब स्कूल जाने का टाइम होता है उस वक्त गैस मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से खाना नहीं बन सकता। और जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि जो लकड़ी की कीमतें हैं वो भी 1000 रुपये मन तक पहुंच चुकी है, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। तो इनका कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है जो गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला होता है इसको भी ख़त्म किया जाए और जो लकड़ियों की कीमतें हैं इसमें भी कमी की जाए, ताकि हम बासानी खरीद सकें और साथ साथ जो खाना है वो घर में पका के खा सकें। जी। मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाके मेहरवाला में आज हमारी मुलाकात एक पढ़े लिखे नौजवान से हुई जिसने BA और B.Ed किया और 10 साल से मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहा है। सर्दियों में गंडेरी की रेडी लगाता है और गर्मियों में दही बेचता है, मगर देहाती इलाके की वजह से सेल कम है। मज़ीद जानते हैं गुलाम अब्बास से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाका मेहरवाला में। आज हम आपकी मुलाकात मेहरवाला के एक बाहिम्मत पढ़े लिखे नौजवान से कराते हैं जिसने BA B.Ed किया हुआ है और उसने जॉब ना मिलने की सूरत में गधेरी की रेडी लगाई हुई है, जो अरसा 10 साल से गधेरी की रेडी लगाकर अपने बच्चों का और अपने घर वालों का पेट पाल रहा है। यहाँ जो है मैं इस बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि जहाँ हम बैठे हैं मेरे वाला इलाका में जहाँ हम रहते हैं ये दरिया सिंध से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ से डिग्री कॉलेज 50 किलोमीटर के फासले पर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सर्दियों में गर्मियों में किस तरह लोग ये सफ़र तय करके कॉलेज तक पहुँचते हैं और तालीम हासिल करते हैं। उसके बावजूद अगर उनके सपने उनके दिल में ही रह जाएं तो उसका मैं क्या कह सकता हूँ। आए हम उन बाहिम्मत नौजवान से बात करते हैं। मेरा नाम गुलाम नाजिक है। मैंने 2003 में BA किया हुआ है और नौकरी न मिलने की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों का और अपना पेट पाल रहा हूँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं मेहनत कर रहा हूँ। लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है कि मेरे लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। जी, तो जिस तरह गुलाम नाजिक भाई ने खूबसूरत बात की कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं एक रिस्क हलाल कमा रहा हूँ, तो एक हदीस शरीफ है कि अलकासिब हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। यहाँ पर हुक्मरान तबके से ये सवाल ज़रूर बनता है कि ये इसके अब बच्चे जब ये उनको तालीम के लिए भेजेगा तो वो इसे क्या कहेंगे कि अब वो आपने BA B.Ed किया और आपको जॉब नहीं मिली और आप हमें स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं। पढ़ोगे पंजाब बढ़ेगा पंजाब का सपना मुझे यहाँ शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। काना कच्चा शहजादा रोड पर सीवरेज की अदम दस्तियाबी की खबर नशर होने पर आला हुकाम का नोटिस। रोड और सीवरेज के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। मजीद जानते हैं माजिद अली शाह से। जी बिल्कुल, काना की 2 नवाह में भी ABN की खबरों पर नोटिस का सिलसिला जारी है। ABN की जानिब से काना कच्चा शहजादा रोड पर सीवरेज के दरीना मसाइल पर निशानदेही की गई थी। खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई तो मकामी MPA नवाज लीडर की जानिब से खसूसी फंड्स को मुख्तस किया गया और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वाज़े देखा जा सकता है यहाँ पर सीवरेज के काम को शुरू करवा दिया गया है। मुतलका MPA नवाज लीडर की जानिब से ये काम शुरू करवाया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स को मुख्तस किया गया है। चंद रोज़ कबल ABN न्यूज़ पर यह खबर नशर की गई थी कि इलाका में सीवरेज की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से यह दरीना मसला हल नहीं हो रहा था, जो कि ABN न्यूज़ की खबर पर नोटिस लेते हुए इंतज़ामिया हरकत में आई और मुख्तलिफ महकमा जात ने स्कोप ऑफ वर्क बनाते हुए इस काम का आगाज़ कर दिया। जी, चौक सरवर शहीद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। मोहल्ला हफ्जाबाद में घरों के सामने सीवरेज पानी के बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, जिसकी वजह से
रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंतजामिया सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम नजर आ रही है। मजीद जानते हैं फ़खर मुश्ताक गुराया से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। एक तरफ पंजाब हुकूमत के दावे साफ़ सुथरा पंजाब, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तहसील चौक सरवर शहीद की, तो यहाँ पर जो है सीवरेज का निज़ाम जो है धर्म भरम है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद के मोहल्ला हाफजाबाद में, और यहाँ पर जो है गुंजान आबादी वाला ये मोहल्ला है, और यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम इस कदर धर्म भरम है कि घरों के सामने एक सीवरेज का बड़ा तालाब बना हुआ है। यहाँ मज़ीद हमारे साथ यहाँ के रहायशी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी ये पानी उतली बस्ती तो आ रहा है, तो इत्थे आके खलो जाता पानी। इत्थे मेन गली है, मेन गली दे विच स्कूलों के बच्चे जिहड़े ने वो अमला सारे का सारा इत्थों दी गुजरदा है। हमारा बहुत परेशानी वाला आलम बना हुआ है, हम गली से नहीं गुजर सकते। जी आपने यहाँ पर जो रहायशी हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो सीवरेज का पानी है हमारे लिए वह बाले जान बना हुआ है। हमारे जो घरों में अफराद हैं वो मुख्तलिफ मूजी अमराज में जो है मुब्तला हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर नोटिस लिया जाए और चौक सरवर शहीद का मोहल्ला हाफजाबाद समेत जहाँ पर भी सीवरेज के मसाइल हैं उनके हल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी मुस्तफ़ाबाद में मेन फिरोजपुर रोड की तामीर तो चंद माह कबल मुकम्मल कर दी गई, लेकिन सर्विस रोड की तामीर ना हो सकी। रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अहले इलाका आए रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं आतिफ मलिक से। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद के मेन सर्विस रोड पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मैं कब बताता चलूँगा जो शहरियों को गुजरने में बहुत ही मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से हादसा मामूल बन गए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। देखिए सर्विस रोड जगह जगह से ज़ब्बू आली का शिकार हो चुका है, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं आए रोज़ हादसात का शिकार हो रहे हैं। और काबिल गौर बात यह है कि मुस्तफ़ाबाद ललियानी में पेट्रोलिंग चेक पोस्ट और ट्रैफिक पुलिस के तैनात होते हुए सर्विस रोड से जो रेत के बड़े बड़े ट्राले जो खड़े होते हैं वजनी, उनकी वजह से जो है ना ये रोड ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हुआ है। तो लिहाजा हमारा हुकाम बाला से ये मुतालबा है कि खुदारा जैसे चंद माह कबल मेन फिरोजपुर रोड को तामीर किया गया है और इस सर्विस रोड को छोड़ दिया गया है, इसी तरह सर्विस रोड की तामीर को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जैसे कि हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि जैसे मेन फिरोजपुर रोड को तमीर किया गया है, वैसे जल्द से जल्द मेन सर्विस रोड को भी तमीर किया जाए ताकि शहरियों की जान माल की हिफाजत हो सके। जी